Hello guys, so my name is and today I'm going to show you what I own. I do oil pastels and I do acrylic paints. I just have started doing acrylic paints, so you will see all the things you need to begin with. And I will also tell you the price of everything and total up. So that will make it easy for you if you to decide if you want to buy it or not. So let's get started. Okay, so this is my bag full of all the goodies I own, and this is my other bag full of sketchbooks and things I use to mount. So let me start with this. Okay, first of all, you need tapes. I have 3 tapes, one clear and two paper tape. Secondly, I have this Feroz Sans colors. They are of premium quality. I'm not even kidding you. These are the best colors. I don't use a graphite pencil, but I use the black color of this packet. So go for them. Okay. The second thing I own is of acrylic. Okay, so these are Omega acrylic colors. I just bought them recently and I'm going to make a scenery, something like this. No, I am not into water stuff because I don't know how to make water yet, so I'm not gonna go with that, but I'm going to make something easy. So here it is a piece of 12 colors. That's more than enough. You only need 5 colors to get started: white, black, red, blue, the dark one will work better, and yellow. Yes, only 5 colors. These are the primary colors and you can mix and make all other colors with them. Okay, so this is number 1. Now let's go to our second thing, which I use and which you need to buy in order to make good paintings. Okay, so the second thing is this oil pastel box. Okay, now fun story, I bought this one for 400, sorry. Its retail price is 450, but I got it in 50 rupees discount because I shopped from a wholesale market, so I got it in a discounted price. Okay, so the other thing is these oil pastels. First of all, there are 36 oil pastel in it. Yes, a set of 36 oil pastels can easily cost you around 1000 or 800. The price of this one was 850, but because I bought it in just 450. Yes, I'm not even kidding. Why? Because it is defected. Can you see? इसका एक हैंडल नहीं है और यहाँ से ये टूटा हुआ है. So because of this tiny defect, उन्होंने मुझे ये इतना सस्ता दिया. Okay, so let me start. Let me show you how perfect it is. I love them. इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत अच्छा ब्लेंड होता है. So ये रहे सारे 36 shades. You don't even need this many shades, but they are very nice. मतलब कुछ mix and match नहीं करना पड़ता नया shade बनाने के लिए. So they are perfect. And यहाँ एक ये भी है, इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बट ये इस्तेमाल होता है अगर मैं चाहूँ कि ये लंबा हो जाए तो इसके पीछे मैं यहाँ इसको फिट कर देती हूँ और इसको यूँ करके लॉक कर देती हूँ और फिर मैं आराम से इसे ऑयल पेस्टल्स यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है. अच्छा, दिस इज़ माई, इसे मैं खोल के रख देती हूँ, 1 मिनट. ओके, सो दिस इज़ माई आर्ट सप्लाइज़, जो कि मैंने बेसिकली रिसेंटली ही ली हैं. ये 2 चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली ही ली हैं. इसके अलावा भी मैंने कुछ चीज़ें रिसेंटली ली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, पैलेट पे बात करते हैं. ओके, सो दिस इज़ माई पैलेट. दिस इज़ द पैलेट आई एम यूजिंग. इसका जो छोटा वाला होता है वो 80 रुपीज़ का मिलता है और ये बड़ा वाला 180 का होता है. ठीक है, लेकिन ये मुझे ये प्रिज्म का है. प्रिज्म इसकी कंपनी का नाम है. ये मुझे डिस्काउंट पे मिला है 150 पे. ठीक है. अच्छा, अब ये मुझे 150 में मिला है. अब मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि आपको क्यों लेना चाहिए वुडन पैलेट्स. वुडन पैलेट्स आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आप एक्रेलिक
एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये गीली रहती है। लाइक अगर आप इसे पानी में सोक कर लें थोड़ी देर, या आप इसे धोएंगे, वॉश करेंगे, तो काफ़ी देर तक जब आप इसमें पेंट लगाएंगे और मिक्स करेंगे तो वो गीली रहेगी। क्योंकि एक्रेलिक पेंट का एक सबसे बड़ी बुराई भी कह लें और सबसे बड़ी अच्छाई भी कह लें, वो ये है कि वो बहुत जल्दी सूख जाती है और उसमें बार बार पानी मिक्स करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, तो ये मैंने ली है 150 रुपीज़ में। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए थी वो थी ये स्प्रे। मेरे पास ये स्प्रे नहीं था। ये बेसिकली वार्निश स्प्रे कहलाता है। ये मैंने बेस्ट क्वालिटी का लिया है, काफ़ी मोटा और काफ़ी सारा है इसमें। मैं अभी तक इससे 4 पेंटिंग्स अपनी वार्निश कर चुकी हूँ, जो कि चारों पुरानी, जिसमें से 2 पुरानी थी और 2 नई थी। तो ये मुझे पड़ा है, ये 180 का था, बट ये मुझे पड़ा है 150 का। अगेन मैंने हर चीज़ में पैसे कम कराए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड रहें। ठीक है, उसके बाद नई चीज़ों में मैंने ब्रशेज़ लिए हैं। मैं आपको ब्रशेज़ दिखा दूँ। अच्छा, ये हैं मेरे ब्रशेज़, बहुत कम हैं आई नो, बट ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आपको जो ब्रशेज़ चाहिए उनकी 3 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी नंबर 1 है राउंड ब्रशेज़, और जो कि सबसे थोड़े एक्सपेंसिव मुझे पड़े क्योंकि मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए। अच्छा, इसमें ये ब्रशेज़ आ रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला मेरा सबसे पुराना ब्रश है। ये मैंने जब बचपन में मैं पेंटिंग करती थी तब यूज़ करती थी। ये पूरा ख़राब हो चुका है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ख़राब ब्रशेज़ को कभी भी जो है ना फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इनकी जो टेक्सचर है ना वो बाद में काम आता है। तो ये मुझे बहुत काम आता है ब्रश जब मुझे फ्लावर्स बनाने होते हैं। तो आई लव दिस वन बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये वाले ब्रशेज़ हैं। अब इन ब्रशेज़ में मैं आपको बता दूं कि ये हाई क्वालिटी ब्रशेज़ हैं। भरूँगा, ये एक ब्रश 80 रुपीज़ का था और मैंने ये जो है लिया है पूरा सेट 200 में, ये 4 ब्रशेज़ का। ठीक है, और ये जो एक ब्रश है 000, ये मेरा फेसेट का मेकअप ब्रश है। अच्छा, अब आपको जो ब्रशेज़ चाहिए स्टार्ट करने के लिए वो हैं 000। ठीक है, और नंबर 4, नंबर 2, नंबर 11 है मेरे पास सबसे बड़ा वाला, और ये है आई थिंक 8 तो आपने ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा अगर आप शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, ये 8 है। तो याद रखिएगा 000, याद रखिएगा आपको जो चाहिए ब्रशेज़ वो हैं 000, 2, 4, 8 एंड 10 वैसे होता है, लेकिन मैंने 11 लिया है क्योंकि मुझे सबसे बड़ा वाला चाहिए था। ओके, सो ये मुझे पड़े थे 200 के। उसके बाद हैं ये वाले ब्रशेज़। इसका पूरा फ्लैट ब्रशेज़ का पूरा सेट मुझे 250 का मिल रहा था, लेकिन मैंने उसमें आई थिंक 10 थे। हाँ 10 थे, तो उसमें 10 थे, लेकिन मैंने उसमें से 4 लिए तो मुझे 100 के पड़े हैं ये चारों। अच्छा, इसमें फ़्लैट ब्रशेज़ में आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप ग्रास बना रहे होते हो या जब आप कलर फैला रहे होते हो। तो इसमें मैंने जो सबसे बड़ा वाला लिया है वो अगेन 11 लिया है, जो उससे छोटा वाला है वो 8 है। अच्छा, और ये जो हैं ये 2 और 4 हैं। ठीक है, तो वही सेम नंबर्स हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक ब्लेंडिंग ब्रश। ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है वो राउंड टिप होता है। ठीक है, और ये इसका नंबर इस पर ऐसी रफली लिखा हुआ है, ये मेड इन पाकिस्तान है, 16 नंबर है इसका। बट यकीन माने इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये जहाँ कलर्स और एजेस ब्लेंड करना हो ये वहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे सारे ब्रशेज़ थे जो मैंने लिए हैं। ओके, मैं बाकी आपको अपनी चीज़ें दिखा दूँ। मेरे पास ये कलर पेंसिल बॉक्स है, इसमें ऑलमोस्ट 36 नहीं बल्कि बहुत सारे कलर्स हैं। ये काफ़ी सारे कलर पैकेट्स को मैंने खोल के इसमें डाला हुआ है, और अभी भी काफ़ी सारे कलर्स मेरे पास लूज़ में भी पड़े हुए हैं। तो ये मैं पहले पेंसिल कलर्स ड्राइंग बनाती थी तो उसमें बहुत काम आते थे, बट फिर मैंने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि बार बार इन्हें शार्प करना मज़ा नहीं आता, बोर हो जाता था। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने जब भी आप स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट करें विद पोस्टर कलर्स। सो ये वाले पोस्टर कलर्स मैं यूज़ करती थी अगेन फ़िरोज़ सन्स के, और ये 30 ml की बॉटल आई थी आई थिंक 20 रुपीज़ की उस वक्त, अब ये 50 की है। मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। तो आपको ब्लैक चाहिए होता है, वाइट चाहिए होता है, रेड चाहिए होता है एंड येलो चाहिए होता है। मेरे पास रेड नहीं है और ब्लू चाहिए होता है। मैंने उसकी जगह एक ब्राउन और वो भी ले लिया क्योंकि मुझे याद है कि मुझे एक जिराफ बनाना था, तो दैट्स वाई मैंने ये कलर्स उस वक्त लिए थे, और मैंने स्टार्ट अपना पेंटिंग करियर यहाँ से किया था। आई वॉज अ किड एट दैट टाइम। अच्छा, ये मेरा जो है स्टेशनरी बॉक्स है, पेंसिल, रबर, स्केल, शार्पनर एंड एवरीथिंग इज़ इनसाइड इट। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये एक स्केचिंग की किट है। ये मैंने जब स्केचिंग सीखी थी, सबसे पहले मैंने शुरू किया था सीखना स्केचिंग से।
जो मैंने चीज़ें प्रोफेशनली सीखी हैं वो स्केचिंग है। मैं अपनी स्केचेस भी आपसे शेयर करूँगी। तो सॉरी ये भी थोड़ा गंदा हो रहा है। अच्छा, एक ये चीज़, ये हम लोग यूज़ करते थे पेंसिल को शार्प करने के लिए, ताकि उसकी जो लेड है वो वेस्ट ना हो। हम लोग बहुत कंजूस थे, और इसका भी जो इसमें से भी जो निकलता था लेड, उसको भी हम ब्लेंडिंग के वक्त यूज़ कर लेते थे। ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास ये पेंसिल्स हैं, ये मेरे पास पेंसिल्स हैं। इनकी हालत थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि पुरानी है, मैंने स्केचिंग करना छोड़ दी है। मार्टोल इनकी कंपनी का नाम है। आई थिंक 2B 8B और 4B है ये मेरे पास। अगेन 2 4 8 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है ख़रीदने के लिए अगर आप बिगिन कर रहे हो तो। अच्छा, फिर मेरे पास ये एक चारकोल पेंसिल है जो कि अब बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, 80 रुपीज़ की एक मिल रही है, और वो भी किसी छोटी सी कंपनी की। ये मेरी मॉरीज़ की है। ठीक है। अच्छा, इसे मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। इसे मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने एक्रेलिक पेंट्स में ऑयल पेंट मिलाना होता है। अच्छा, फिर ये हैं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये इसका पूरा पैकेट मिलता है, ये कैंसिलिंग शीट से बना होता है, तो ये ब्लेंडिंग के काम आता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूर आपको चाहिए होगा। अच्छा, इसके अलावा गाइस ये मेरे कलर्ड पेन्स हैं। ठीक है, मैं पॉइंटर्स यूज़ करती हूँ, मैं कैलीग्राफी भी करती थी एक टाइम पे, तब ये बहुत काम आते थे। इसके अलावा कट मार्कर्स होते थे मेरे पास हर कलर में, उसका पैकेट मुझे भी मिल नहीं रहा है, वरना वो भी मैं आपको दिखाती। ये सारी चीज़ें मैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ। अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टार्ट करने के लिए यही चाहिए। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रशेज़, स्टार्ट कर रहे हैं तो पोस्टर कलर्स, ऑयल पेस्टल का एक पैक, और ऑब्वियसली आपकी स्टार्टिंग एक्रेलिक कलर्स। अगर आप स्टार्ट करें तो ओमेगा बेस्ट कंपनी है, अदरवाइज़ मैं आपको एक सेकंड कंपनी भी बताऊंगी जो बहुत बेस्ट है। अच्छा, और फिर आपको अपनी पेंटिंग बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपकी पैलेट हो गई, और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? दूसरी चीज़ आपको चाहिए एक वुडन बोर्ड। वो ये रहा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक वुडन बोर्ड है, और ये एक ईज़ल पे लगा हुआ है। ये मैंने ख़रीदा है रिसेंटली। ये मैंने मेटल से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए 2 सेटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 होल्स जो हैं बेसिकली इसकी हाइट बताते हैं। अभी ये 4 फीट पे सेट हुआ हुआ है, नीचे वाला 3 फीट है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ एक ऊपर भी वेल्डिंग वाले को जाकर जो है यहाँ होल करा लूँ। ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये अच्छी क्वालिटी का है। ये ख़राब सिर्फ जब होगा जब इस पर रस्ट लगेगा, और रस्ट इस पर इतनी जल्दी लगेगा नहीं। और दूसरी बात कि इसकी अगर कुछ भी चीज़ टूटती है तो आप नीचे आराम से वेल्डिंग वाले के पास जाकर इसे जुड़वा सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। मैं आपको वुडन बोर्ड भी दिखाती हूँ। ये वुडन बोर्ड है गाइस। मैंने भी इस पर से प्लास्टिक हटाई नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं अपनी पेंटिंग्स ईज़िली कर पाती हूँ। ये बोर्ड मुझे पड़ा है 300 का, और ये जो ईज़ल है ये मुझे 3 फीट की मिल रही थी। 3 फीट यहाँ होता है, 3 फीट की मिल रही थी 1000 की, और 4 फीट की मिल रही थी 1200 की। मगर मैंने ये दोनों चीज़ें कम करा के पैसे दोनों चीज़ें 1200 में ली हैं। अलावा मैंने नेक्स्ट चीज़ ली है प्रिज्म की ही A3 साइज़ की स्केच बुक। ये बहुत मज़े का पेपर है, इस पर एक्रेलिक पेंट बहुत अच्छा होता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये लिए। ये मुझे पड़ी है 250 की, इसमें उसने पैसे कम नहीं करे। तो अब ग्रैंड टोटल मैं आपको बता दूँ, ये पेंट्स, ये और ये दोनों चीज़ें, और उसके अलावा ये स्प्रे, ये पैलेट, ये सारे ब्रशेज़, ये सब मिला के मुझे जो है 3200 बन रहे थे। लेकिन उसने उसमें भी थोड़े से कम कर दिए और मैंने उसे 3000 रुपये दिए हैं। जी हाँ, ये सब कुछ मुझे 3000 में मिला, और इसके साथ साथ फ्री होम डिलीवरी भी मिली। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप लोग जानना चाहते होंगे मैंने कहाँ से ली, तो ये मैंने मेमन फाउंडेशन के बाहर हुसैनाबाद पर एक शॉप होती है जिसका नाम है मेमन फाइन आर्ट्स, वहाँ से ली है। ओके गाइस, चलें फिर मैं चलती हूँ, और हम आप मिलेंगे इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल अभी नया बना है, तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मेकअप से रिलेटेड भी बना सकती हूँ या कुकिंग से रिलेटेड भी बना सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ आजकल 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है: पेंटिंग, मेकअप एंड कुकिंग। दैट्स इट। टाटा।